वंशिका जैन, वंशिका भाव्या तेजवानी, भाव्या साइन कीजिए, कम एंड साइन प्लीज। अर्जुन सिंघल, सुधांशु सचन, सुधांशु, हामिद प्रसाद, सूरज सिंह तोमर, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, शैलेंद्र कुमार है, विपिन कुमार, विपिन कुमार, विक्रांत यादव, शिशिर चतुर्वेदी। I welcome all of you. Kindly take your seat. That the enrollment committee, under whose guidance you all of you are going to be enrolled today. I am introducing the members and chairman of the enrollment committee, Sri R. Goswamiji, chairman enrollment committee, and another senior member, Sri Rakesh Sehrawatji, he is a former chairman of Bar Council of Delhi and member of the enrollment committee. Kindly give a hand up. And another person who is also a member of Bar Council of Delhi. He is also a co-chairman, my younger brother, Ajay Sonji. All of you are waiting, perhaps it's 1 hour or 2 hours for yourself to be how you will have to going to be enrolled in the Bar Council. You have waited 3 years and 5 years at your college in obtaining the certificates of LLB. Here all of you have filled a form. Your own, but I understand and I believe none of us has gone through with the Advocate Act 1961, under which we are going, all of you are going to be enrolled. We are enrolled under that act. But there is no, this act never been part of a curriculum. Isn't it? So we should know the act under which we are going to be enrolled, what are the rights, what are the duties, what are the misconduct, what are the good conduct, how we have to behave in the court,
or you will have to present yourself in the court. So everything is written there. So it's my humble request to all of you, you must go through the advocate act. And you will also understand why Bar Council is a registered body. Who are the members? All members are going to be elected to here. So the function, you will understand the function of the bar. So now I request, because the first time Ajay Sondhi is present in the enrollment meeting of enrollment committee, and he is not only dynamic in presence, Lindor, his appearance, but he is running a very reputed good law firm in India. So you also will be benefited. He is a master in arbitration. So I request the Ajay Sondhi, please come and share your experience. At the outset, my dear colleagues, my heartfelt gratitude to the committee, which is ably led by Shri Goswami ji, then Sherawat sir, and then Mukesh ji. And there are other members also who are unfortunately not here today. So this is just the beginning of the beginning for you guys. The only profession where the clients will come, they'll pay you and they'll tell you to learn. And there's no dearth of knowledge. So when I started my career, I thought whether I'll be able to do it properly or not. Because I was very petrified. कि इतना ज़्यादा लॉ है, इतना वास्ट लॉ है, कैसे करूँगा मैं? इतनी चीज़ों को कैसे देख पाऊँगा? But trust me, it's the easiest profession. It's just what requires you have to work on your basics. If your basics are right, you can do anything and everything under the sun. No one can stop you. And people will say you have to be extra smart or super smart. No. You just have to have the common sense. See, law is nothing but logic. Any of the statutes, any of the acts, be it related to a succession, be it the civil procedure code, or be it anything, they'll teach you the basic things as to how the society functions in the government. So I did corporate for a while, then I switched to litigation. So दोनों चीजें, be it the corporate or be it the litigation, will teach you something or the other. And every experience which you will get here, it will be unparalleled. The only yearn you should have is to learn. Learning will come subsequently, though I know that is also very crucial. But अगर आपने शुरू के 5 से 6 साल मेहनत कर ली, आपकी foundation create हो गई, then you will be able to do everything. Again, this profession will teach you the do's and the don'ts. The best thing, it will teach you what not to do in life. Because all the time, what you do is to learn from the experiences of others. How the other person is reacting, acting in a particular situation, and how to get out of that situation. The most important thing you should always remember is to respect your seniors in the profession. They will always guide you, they will always nurture you, and they are the someone who will always come whenever you need them the most. Punctuality is the second thing. Be there, be punctual every time whenever you're in court or in a meeting or before the client. Note down everything, jot down everything. Reading law is one thing, all of us have read the law. But when it comes to using it practically, it is very, very different. That kind of knowledge you will get only when you go to the court. While you're in the court, rather than sitting in canteen, sit in a particular courtroom, see how the judge is acting, reacting to a particular situation. All those things will help you majorly. And the only thing is, this is only one thing which will require throughout. That is just the hard work. There is no substitute. There is no substitute for it. So if I think a person like me who can achieve something in 18 years, I think you guys are way smarter, way sharper, and you can do it maybe in 9 years or 10 years. It's just the hard work, and when the hard work is there, the luck will also be there. So congratulations once again. And I wish you a successful professional journey, and you have seniors who you should look up to, and they will be your best source, best guide throughout the career. Congratulations.
Thank you, Ajay. The three things Ajay has shared you. What are the three things? Patience. Thereafter, hard work. Thereafter, punctuality. And before all three words, one word is integrity. If we inculcate all these three words, and we can move under these three words direction, and we will lose the integrity, then nothing will survive. So all are synonyms to each other, all are component to each other. So it's very difficult profession you have chosen, but you will enjoy it because you will be the master of your self and you will be servant of yourself. हिंदी में कहते हैं बोलती नहीं है। तो हर एक पुराने जमाने में हर एक वकील के साथ एक प्यून होते हैं, हर एक चैम्बर में एक होता है, उनका मुंशी होता है, जो कि एडवोकेट को हर एक केस के बारे में, डायरी मेंटेन के बारे में, किस कोर्ट का क्या प्रोसीजर एस्पेक्ट है उसके बारे में वकील साहब को आर्गुमेंट करके भूल जाते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो who will be your the best teacher in the court? The clerk of an advocate to whom you are going to go in. The clerk will be the best friend. Who will teach all of you what are the procedures we never taught or read in the curriculum. Bill bond कैसे भरना है, do not know. सरवाना कैसे भरना है, do not know. वो अपनी पढ़ाई होती है क्लास में। अभी वकील साहब के पास से वो भी भूल गए, कहीं सिंगर हो गए काफी। तो उनका मुंशी सिखाता है ये सब कुछ। अब मैं जो हमारे में वरिष्ठ सदस्य हैं, श्री राकेश सहरावत जी, इनका भी 35 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में, डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में आपको समझाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ सर आपसे। पहले तो मैं आप सबको इस सप्ताह में जो दिवाली और हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण वो है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन को हैप्पी दिवाली। गेट ऑफ एनरोलमेंट आज की जो तारीख है, ये आपको थ्रू द लाइफ हमेशा याद रहेगी। जस्ट लाइक योर डेट ऑफ बर्थ, ये आपका आज लीगल फैकल्टी में फिर जन्म हुआ है, और जहाँ भी आप जाओगे, किसी भी कंपटीशन में आप कोई फॉर्म भरोगे, आपको एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ एनरोलमेंट दोनों फिल करने होंगे। कोई भी एसोसिएशन की मेंबरशिप लोगे, देयर आल्सो यू नीड दैट। So it's such an important day for you. मेरी आज तक मुझे याद है डेट ऑफ एनरोलमेंट 17 अक्टूबर 1990। 33 साल का पूरे हो गए, पता ही नहीं लगा। इस प्रोफेशन में स्काई इज द लिमिट। काम इतना कर लो, वो भी फिर भी काम। पैसा भी आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आप चाहोगे कि भाई आज हम एनरोलमेंट हो गया है, वकील बन गए हैं, तो हमें आज ही दाखिल कर लिया। जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया था नर्सरी केजी में, तो आज आपका एडमिशन वकालत की दुनिया में केजी में एडमिशन हो रहा है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द डे। जैसे हमने शुरुआत में अल्फ़ाबेट सीखे थे, अल्फ़ाबेट सीख के फिर सेंटेंसेस बनाए थे, फिर हमारी फ्लुएंसी बढ़ी लैंग्वेज के ऊपर। द सेम वे एवरी डे you will learn,
and still I am learning after 33 years. बार काउंसिल में आपको 2 कारणों से बुलाया जाता है यहाँ पे। पहले तो ये होता था कि हमने लॉ पास कर लिया, उसका फॉर्म के साथ डिग्री लगा दी और हमारा राइट है, हमें नंबर मिलना चाहिए ऐसे। अब ऐसा नहीं है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पास जजमेंट जस्टिस संजय किशन कौल, क्योंकि उन्होंने देखा डे बाय डे वकालत का स्तर गिरता जा रहा है, तो उन्होंने बार काउंसिल की एनरोलमेंट कमेटी को डायरेक्शन दिए कि बिफोर एनरोलिंग एनी एप्लीकेंट टू द रोल ऑफ बार काउंसिल, you have to satisfy yourself whether the applicant possesses elementary knowledge of law or not. कोई 3 साल करके आए, कोई 5 साल करके आए। अब 3 साल के कितने करके आए, राहत उठाना मैक्सिमम 3 साल से, एंड 5 ईयर इक्वली। और रिटायरमेंट से कितने लोग आए हैं? तो आपने 3 साल 5 साल जो भी अगर लॉ पढ़ के आए, हम ये नहीं कह रहे कि आप वेल वर्स होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये तो पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे कुछ पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, वो भी नहीं पता किसी को। वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अब एक पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, रिट्स के बारे में नहीं पता। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप लोग कोई बता सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने रेट्स होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी इसके बारे में। हम वेलकम श्री केसी मित्तल जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, और हमारे सबसे वरिष्ठ बार काउंसिल मेंबर। सर, आई वेलकम यू। आप लकी कि आज आपको तो साहब आपका कब का एनरोलमेंट है? देव एनरोलमेंट कौन सी ईयर का है? 72। 28 और 23 आपके जन्म भी नहीं थे जब तक ये सीनियर बन चुके हैं। तो ये आपको इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग आपको जजेस ने ये नोटिस किया है प्रोफेशनल एथिक्स की कमी है आप लोगों के अंदर। लाइसेंस तो आपको देर समय सबको मिल ही जाएगा, क्योंकि बार काउंसिल ही एक ऐसी बार काउंसिल है दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट करती है, सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर देती है। नहीं तो स्टेट्स में जाओगे तो स्टेट में तो 6 महीने की तो डेट मिलती है मीटिंग की, और हम यहाँ पे सितंबर, अगस्त और सितंबर में हमने हर दिन मीटिंग की है, और हम यहाँ से रात को 11 बजे साइन करके निकलते थे और अगले दिन फिर मीटिंग होती थी। कंसर्न फॉर यू पीपल, हम चाहते हैं कि आप कोई भी यहाँ पे आया है उसका एक दिन भी डिले ना हो, क्योंकि यहाँ से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी। ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ही एक ऐसी बार काउंसिल है जो ये अपने कैंडिडेट्स के लिए इतना ध्यान रखती है, and that's why you should feel proud that you are enrolled with बार काउंसिल। तो एक कारण तो हमने ये बताया आपको कि जस्टिस संजय किशन कौल की जजमेंट थी। दूसरा है कि आपको बार काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से कि आप यहाँ अब आप को ओनर बनने वाले इस बिल्डिंग के आफ्टर रजिस्टरिंग योरसेल्फ एज एन एडवोकेट, तो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है बार काउंसिल दिल्ली। इसका इलेक्शन होता है 5 साल के लिए, और इसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं 5 और 25 साल। और हम 25 का काम होता है कि जो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से इनरोल्ड हैं वो उनके वेलफेयर के बारे में हम लोग जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग। अब इलेक्शन हर 5 साल के बाद है, सब नहीं कि हम जीत गए और बैठ गए चुपचाप, अगली बार वोटर फिर पूछेगा भाई क्या किया 5 साल। मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि अब आने वाले इलेक्शन में आप सब लोग वोटर हो, अब आपको वोट डालते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है
कि हमने 5 साल में आपके लिए कुछ काम किया या नहीं किया। और ये एक आदमी काम नहीं होता, ये और सभी 25 लोग जो होते हैं वो मिल के काम करते हैं, तो जाके हम आपका वेलफेयर कर पाते हैं, गवर्नमेंट से आपकी अपनी मांगे मंजूर। 2018 में हमारी काउंसिल का इलेक्शन हुआ और 2023 में टर्म अभी खत्म होगी हमारी, तो 24 एंड में हमारा इलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले 25 इलेक्टेड मेंबर आए, हम आपस में फिर हमारा इंटर इलेक्शन वो 25 इलेक्ट करते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी। तो सबसे पहले उस काउंसिल के चेयरमैन रहे श्री केसी मित्तल जी, और मैं बताना चाहूँगा उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास में दर्ज है। शायद ही एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए किसी ने इतना काम किया हो। ये प्रेसिडेंट है जब दिल्ली हाईकोर्ट बार के जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाई है, जिसका सर 250 करोड़ रुपया एस्टिमेट है, कितना 180 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लेके उन्होंने एडवोकेट्स के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाई। जब ये इससे पहले चेयरमैन थे उस वक्त एडवोकेट का कोई भी वेलफेयर के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। मेरे फादर उस वक्त चेयरमैन थे 99 में, मित्तल साहब के साथ मिलके एडवोकेट वेलफेयर एक्ट पास करवाया जब लेट श्री अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से उन्होंने 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से उस लॉयर्स वेलफेयर फंड में जमा किया। तो मित्तल साहब ने उसकी फाउंडेशन रखी। 2012 में जब हमने देखा कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एडवोकेट्स को, उससे काम नहीं चल रहा, देन माय फ्रेंड श्री R.S. गोस्वामी was chairman of this council and at that time I was vice chairman under him। हमने एक विज्ञान भवन में फंक्शन किया, वहाँ से हमने आवाज़ उठाई जहाँ पे हमने महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चीफ गेस्ट बनाया, और वहाँ से हमने आवाज़ उठाई कि एडवोकेट को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। हमने कहा कोई मेडिकल रिइंबर्समेंट की स्कीम होनी चाहिए, और अगर कोई एडवोकेट की डेथ हो जाती है तो उसको उसका लाइफ कवर का कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। और ये मैं बताऊं उस आवाज़ का ये जादू हुआ कि अंडर द चेयरमैन ऑफ श्री केसी मित्तल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जो भी एडवोकेट दिल्ली बार काउंसिल से इनरोल्ड है उसका 5 लाख तक का मेडिकल बिल रियम्बर्स होगा कैशलेस, और इन केस किसी की डेथ हो जाती है उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिलेगा। दोस्तों हमने इन 5 सालों में ये काम किया। मित्तल साहब ने अगर पहले रहते हुए वो काम ना किया होता, गोस्वामी जी ने काम ना किया होता और उनकी टीम में हम ना मिल के काम करते तो हमें बार बार कोई इलेक्ट नहीं करता। केसी मित्तल जी 4 बार है सर, 3rd टाइम नहीं, बीच में करिए वहाँ हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाती है ना इनका। हाँ 5th टर्म है इनकी, एंड इन बिटवीन ये हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट रहे। तो ही इज सच ए लीजेंड इन दिस प्रोफेशन कि हाई कोर्ट बार भी इनको बार बार इलेक्ट करती है। तो आपके लिए ये खुशनसीबी है कि आइए आपको ब्लेस करने आए हैं। मैं आगे आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कोरोना के टाइम पे, क्योंकि एडवोकेट्स के पास कोर्स बंद हो गई थी, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, हमने पूरी जो भी एडवोकेट फैकल्टी में एडवोकेट थे हमारे, एक जनरल नोटिस से हमने कहा कि अगर किसी को भी फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस हो रही है तो पोर्टल बनाया, उस पर अपनी एप्लीकेशन डाल दें, नाम और डे नंबर, और हमने तय किया कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट जो भी उस पर अप्लाई करेगा उसके सीधा अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और हमने 25 करोड़ ऐसे हमने दोस्तों अपने साथियों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। यही नहीं, जो साथी हमारे उस टाइम में हमें छोड़ के चले गए, 170 हमारे साथी थे, उनकी हर फैमिली को दिल्ली गवर्नमेंट से हमने 10-10 लाख रुपए उनकी फैमिली को दिया। जो हमारे साथी हॉस्पिटलाइज थे
उनके 5-5 लाख के बिल रिम्बर्स हुए, और अगर उसके बाद भी कोई बच गया, अगर मान लो कोई मेंबर नहीं बन पाया या किसी बात है, तो बार कौंसिल ने अपने अकाउंट से यहाँ पे जो फंड है वहाँ से हमने हर एडवोकेट को 50,000 कर दिया। और मैं ये कहने में अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अलावा कहीं भी और स्टेट बार काउंसिल ने ऐसा कोई काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे बार काउंसिल के मैंने बेनिफिट्स गिनवाए हैं आपको, उसके साथ साथ उसकी आपकी कुछ ड्यूटी बनती है। बार काउंसिल के पास पावर है अगर लाइसेंस ग्रांट करने की। In the same way, we can have power to cancel your license. In two eventuality, we can cancel your license. First, any act of professional misconduct, or second, any act of unbecoming of an act of an advocate comes under the act where bar council can cancel your license. कैसे? अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है नहीं है? इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया। आप अनजाने में कर दो, लेकिन आप तो लाइबल हो गए। आपने क्लाइंट से फीस ले ली, आपने केस फाइल नहीं किया, आपने केस फाइल कर दिया, आप कोर्ट में नहीं गए, आपने फीस में कुछ क्लाइंट से अनबन हो गई, आप कोर्ट में नहीं गए, कोई एडवर्स ऑर्डर हो गया। ये सारे एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आते हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपकी फीस के ऊपर क्लाइंट से नहीं बनी है कुछ बात, तो आप कोर्ट में जाइए, अपना वकालतनामा विड्रॉ कीजिए, और ये ऑर्डर शीट में आए कि यू आर विड्रॉइंग योर वकालतनामा बिकॉज योर प्रोफेशनल फीस इज नॉट पेड बाय द क्लाइंट। अदरवाइज अगर आप नहीं गए और कोई एडवर्स ऑर्डर होगी तो आप इसके लिए लायबल होंगे, और यहाँ पे आके हमें मजबूरी में फिर आपके लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि एडवोकेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, हमें ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए जैसे आजकल हो रहा है। स्टूडेंट्स लाइफ से लोग आते हैं, वही लड़ाई झगड़े, अगर इस तरीके कोई आपका एक्ट होगा तो बार काउंसिल उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो भी आपका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आएगा। और रिसेंटली हमने 30,000 के 20-25 एडवोकेट्स का लाइसेंस कैंसिल किया भी है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था। बाकी मेरे बाकी साथी भी आपसे अपने विचार शेयर करेंगे और बहुत कुछ है आपको बताने को। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड यू टच द न्यू हाइट्स इन द प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कोर्ट में, बाहर भी पड़ोसियों के साथ भी नहीं, जहाँ पे आप रहते हो जो सराउंडिंग है वहाँ भी नहीं। अब मैं बताऊँ कि बार काउंसिल में सबसे एक्सपीरियंस, जब मैं आया था तब भी ये बार काउंसिल के मेंबर थे। मेरा 98 में एनरोलमेंट हुआ, तब भी मेंबर थे हमारे सीपीसी में। आपकी तरह मैं भी बैठा था यहीं पे, और सबसे जुझारू इनकी जो बातों को जरूर से ग्रहण करना होगा, क्योंकि हमने भी किया, फायदा ही फायदा है उसमें। हर एक तरह का लिटिगेशन मैं आग्रह करता हूँ श्री केसी मित्तल जी से कि अपने अनुभव से आप इनके अनुभव का लाभ जरूर उठाना, क्योंकि बहुत आप ऐसे का नहीं पता, ये आप लोगों का भाग्य है। एनरोलमेंट कमेटी स्वामी जी, एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर राकेश शेरावत जी, बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन अजय जी,
काउंसिल के सेक्रेटरी कुमार मुकेश जी और आप सभी जो आज एनरोल हुए हैं बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, मेरे बच्चों, पहले मैं आप सबको, क्योंकि जिंदगी के एक नए पड़ाव में आप जा रहे हैं और उसकी शुरुआत में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना था। ये सफर बहुत ही जिम्मेवारी से भरा हुआ है। आप सब जो भी एनरोल हुए हैं आज, आपको बहुत सी बातें राकेश शेरावत जी ने बताई और गोस्वामी जी ने बताई। तो मैं 2-3 चीज आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि राकेश शेरावत जी ने आपको वेलफेयर एक्ट की जो बात की, वो वेलफेयर एक्ट रणबीर शेरावत जी उनके पिताजी की देन थी। उनका अच्छा संबंध था अरुण जेटली जी से, वो शायद रोज मिलते भी थे सुबह वॉक पे, और उनकी मेहनत से ये जो वेलफेयर एक्ट 2001 उस वक्त के कानून बना। वो अलग बात है कि मैं जब चेयरमैन बना तो उसका इम्प्लीमेंटेशन फिर मेरे हाथ में आ गया। तो और इसी तरीके से ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की शुरुआत भी रणबीर शेरावत जी की हुई है। इसके बगैर शायद ये बिल्डिंग भी ना बनती, क्योंकि ये सारी जगह जितनी भी थी ये झुग्गियों से घिरी हुई थी और इसको नक्शा पास कराना कोई आसान काम नहीं था खाली करा के। तो ये सब शेरावत जी का एक कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेजर काउंसिल में रहा है और हम आज भी उनको भूलते नहीं हैं। मैं आपसे 3 बात एक जो और कहना चाह रहा हूँ। जो मैंने थोड़ा महसूस किया, आज की जो लीगल एजुकेशन पॉलिसी है या जो हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम जब हम लॉ फैकल्टी में थे 69-72 में, उसमें आज में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक वकील के नाते हमें कैसे कंडक्ट करना है, कैसे वकालत करनी है, प्रोफेशन में कैसे सर्वाइव करना है और एक डिसिप्लिन और डिग्निटी को कैसे मेंटेन करना है, वो बहुत जरूरी है। वो नहीं बदला। वो काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स उस वक्त भी वही थे, आज भी वही है। पर एक चीज जो नई पैदा हुई है वो है कमर्शियलाइजेशन। और जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, सब में तकरीबन इसी पहलू पर लीगल एजुकेशन को बेस किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि लीगल प्रोफेशन एक सर्विस है, एक डेडिकेशन है, एक डिसिप्लिन है, एक समाज में, कोर्ट में एक मान सम्मान और इज्जत है। इसलिए बहुत पहले से जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि लीगल प्रोफेशन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये कॉमर्स नहीं है। आप सबको, मुझे नहीं मालूम कितने लोग सही मायने में कचहरी में आएंगे और कितना नहीं आएंगे, और कितने लोग जॉब में जाएंगे या कोशिश करेंगे,
पर आप कहीं भी रहे, कहीं भी जाएं, वो एक अलग मुद्दा है। पर एक चीज को मत भूलिएगा कि लीगल प्रोफेशन की डिग्निटी को हमें मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कुछ कभी कभी सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। ये बात सही है कि जब हम वकालत में आते हैं तो हमें अपने रोजी रोटी का भी देखना पड़ता है, अपने घर परिवार को भी देखना पड़ता है। खाली पीली तो चलेगा नहीं। अब उसके लिए आपको, जब तक आप अपने ब्रीफ को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं करेंगे ऑन फैक्ट्स एंड लॉ, और जब आप लॉ की बात करते हैं तो ये मानकर मत चलिए कि एक जजमेंट आपने पढ़ लिया लैपटॉप पे और उस जजमेंट को देखा कि बस मुझे तो इसी पे बहस करनी है। वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वो जजमेंट आपके केस में लागू है या नहीं है, आपके फैक्ट्स पे है या नहीं है, या आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या उस जजमेंट के को मानते हुए ऐसा तर्क बता सकते हैं जिससे आप अपने पॉइंट को बना सकें। और ये तभी हो सकता है जब आप अप टू डेट रहेंगे फैक्ट्स पे और जजमेंट। तो जो लोग वकालत में सक्सेसफुल, एक ये कुंजी है सही मायने में, जिसको अगर आप अपनाएं तो बहुत ही बेहतर रहेगा और इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, और मेरे जितने साथी यहाँ हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस प्रोफेशन में एक एसेट की तरह से आएंगे और काम करेंगे, और हम जहाँ कहीं भी किसी को किसी भी मदद की या सहायता की जरूरत हो उसके लिए हम हमेशा, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये मोस्ट वेलकम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं एनरोलमेंट कमेटी से आग्रह करूंगा कि हमारे वरिष्ठ फॉर्मर चेयरमैन और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री किसी मित्तल जी को सौ बिछावा देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। अब आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं एनरोलमेंट कमेटी से बीइंग सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों का एनरोलमेंट जल्दी से जल्दी करें, ताकि कल से आप या शाम से ये बुकिंग बन जाएंगे। ज़्यादा देर नहीं है वैसे तो, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आयुष गोस्वामी जी आपसे शेयर करेंगे। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपके प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं गोस्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि आके आप लोगों को वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इतना बड़ा शुभ काम आप अपनी जिंदगी के अंदर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने इष्ट हो, तो सबका इष्ट हो, तो जिस देवता को मानता है उसका जरूर हो। सबसे पहले आप लोगों का बार काउंसिल के दफ्तर में मैं अपनी तरफ से और पूरी बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
जिस तरीके से दीपावली पर हम लोग दीपक जलाकर रोशनी करते हैं, हम भी आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम तीनों मेंबर बार काउंसिल जो इस कमेटी के मेंबर हैं, ऑनररी सेक्रेटरी के सहयोग से आज हमारे बीच में हमारे सीनियर बोर्ड चेयरमैन श्री केसी मित्तल साहब के ब्लेसिंग, अजय सोनी जी का प्यार और राकेश जी ने जो बात कही उस सब से का प्यार आपको मिला। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज आप इसी तरीके से जिस तरह हम दीपावली पर दीपक जलाएंगे उसी तरीके के दीपक आज आपकी दीपावली आज होनी चाहिए। केसी मित्तल जी ने आपको अपना अनुभव सुनाया। बहुत लंबे समय से आप क्रिमिनल के लॉयर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आप सीनियर काउंसिल रहे हैं। इंदिरा गांधी के पारिवारिक आप नहीं बताई किसी ने एडवोकेट रहे हैं। आपका पूरा परिवार इंदिरा गांधी जी का एडवोकेट रहा। अजय सोनी जी के विषय में अजय सोनी जी ने कुछ नहीं बताया था। अजय सोनी जी लूथरा एंड लूथरा के पार्टनर रहे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पार्टी, और आपने देखा कितने मृदुभाषी हैं और बात काउंसिल में पहली बार हम लोगों के साथ आए हैं, तो उनका स्वागत भी आप लोगों की तरफ से करता हूँ। श्री राकेश शेरावत जी का आपने अनुभव सुना, उन्होंने बहुत ज्ञान की बात आप लोगों को बताई। ये भी बताया कि आपके पिताजी इस बार काउंसिल के चेयरमैन रहे। ये बार काउंसिल के इतिहास में केवल पहला मौका है जहां फादर के बाद बेटे को भी ये मौका मिला कि वो इतनी बड़ी लीगल फ्रेटर्निटी की सेवा कर सके। श्री कुमार मुकेश जी जो आप सेक्रेटरी देख रहे हैं, मेरे साथ 2018 से 20 तक इसी एनरोलमेंट कमेटी के मेंबर थे और आज ऑनररी सेक्रेटरी हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूं। अब मुझे केवल एक बात बताइए, जितनी बात सबने अपने अपने अनुभव की बताई, आप लोगों को कुछ महसूस हुआ या नहीं? कुछ लगा कि हम वास्तव में जो बातें बताई उनको हमें स्वीकार करना चाहिए? जिस समय आपने डिसाइड किया 12th करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो आज 50-50 कि हमें लॉ में जाना है, तो उस समय आपके कई साथी मेडिकल में भी गए, बीटेक में भी गए, होटल मैनेजमेंट के अंदर भी गए, लेकिन आपने प्रोफेशन को चुना। आपने उनसे 100 गुनी ज्यादा रिस्क ली। उसके कई कारण थे। या तो आपके मन में था कि हमें अच्छा वकील बनना है, या हमारे और कोई काम करने का हिसाब किताब नहीं है हमारे पास, हम और प्रोफेशन में सूट नहीं करते। वो लोग कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बीटेक, कोई एमटेक कर रहे हैं, आप लोग लॉ के अंदर आए। लेकिन आपने कहां से एजुकेशन ली, ये आपके सामने प्रश्न चिन्ह था। किसी ने NLU से ली, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली, किसी ने IP से ली, किसी ने कुरुक्षेत्र से ली, किसी ने कहीं से लिया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां आपकी दो चीजें एक साथ चली, आपका कर्म और आपका खर्च। आपने मेहनत की, नहीं आया अच्छी यूनिवर्सिटी में नंबर, उनका दोष नहीं। लेकिन यदि हमने लिया ही नहीं, केवल हमें लॉ ग्रेजुएशन ही करना था, कहीं से भी हो जाए, चाहे हम कॉलेज जाएं ना जाएं, पढ़ें ना पढ़ें, हमें तो केवल डिग्री लेनी है और सीधा बार काउंसिल में 14,500 रुपये जमा करने और एनरोलमेंट लेकर दुनिया में तैर हो। 2 कैटेगरी हो गई हमारे पास में। यदि आज हम एक एक व्यक्ति का, मैं आपको अनुभव बताना चाहता हूं कि इस एनरोलमेंट में मेरा 4था टेन्योर है। 2003 से मैं कंटिन्यूअस एनरोलमेंट कमेटी के अंदर हूं, तो मैं एक एक आदमी का 5 मिनट के अंदर ही बता सकता हूं कौन ने क्लास अटेंड की और किसने नहीं। लेकिन यदि आज हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको अच्छा लगेगा? बताइए आप जो से अच्छा लगेगा? किसी के इंसल्ट किसी के सामने, किसी का क्वेश्चन किसी के सामने, और बाहर जाके आप क्या करेंगे? सिवाय मुझे गाली देने के दूसरा काम कोई नहीं करेगा।
ये गोस्वामी जी थे, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, राकेश जी ने इंटरव्यू लिया और हमको फेल करके भेज दिया और हमारी मीटिंग 2 महीने बाद कर। ये कहेंगे ना आप? तो यदि ये कहेंगे तो हम इतना आपके साथ जो मेहनत कर रहे हैं, इतने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिसने 5 साल का कोर्स किया उन्होंने सैकड़ों लेक्चर सुने, जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया उन्होंने लेक्चर सुने, लेकिन जिन्होंने कोर्स ही नहीं किया तो उनके लिए तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। आप वहाँ देखेंगे कि हाई कोर्ट के जज आए, सुप्रीम कोर्ट के जज आए, आज भी चर्चा सारे उन्होंने आपको सुनाई। आधे टाइम आप सुनते थे, आधे टाइम कैंटीन होते थे, आधे टाइम फ्रेंड के साथ मोबाइल पे लगे रहते। लेकिन दोस्तों यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? यहाँ आज मिनी इंडिया है, पूरा देश से आए हुए लोग हैं। आप एक दूसरे को नहीं जानते। ये ऑल आर लकी कि हमने इतना बड़ा परिवार एक कमरे के अंदर बैठा है। आज आप जितने लोग एनरोल्ड होंगे या नहीं होंगे, कम से कम आप जहां एक दूसरे को मिलेंगे ये तो रहेगा कि हमारा एनरोलमेंट 1 दिन का है। और एनरोलमेंट की कीमत और ताकत, इन्होंने आपको अपनी बातें बताई, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। इसकी इतनी ताकत है कि आज यदि हम आज एडजॉर्न कर देते हैं मीटिंग, तब घर वाले पूछेंगे कहाँ गए थे, बोले एनरोलमेंट। क्या बात थी? बोले वहाँ अच्छे लोग नहीं बैठे थे इसलिए एनरोलमेंट हो गया। इसलिए नहीं कि हमने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू फेल हो गए। ये कोई नहीं चाहेगा बेटा, लेकिन आज एनरोल्ड हो जाएगा दोस्तों। तो राकेश जी ने कहा ना कि 90 आते ही सबसे पहले राकेश जी अपनी स्पीच में अपना एनरोलमेंट नंबर बता दें, डेट ऑफ एनरोलमेंट नंबर भी मित्तल साहब ने बताया, मोदी साहब ने बताया, मुकेश जी ने। क्या है एनरोलमेंट दोस्तों? आज के बाद आपकी जिंदगी है एनरोलमेंट। इसके बदौलत से आज आपकी पहचान है एनरोलमेंट। डेट ऑफ बर्थ पर तो केवल केक कटता है, एनरोलमेंट तो सिल्वर होती है। जैसे यहाँ से निकलोगे हाई कोर्ट में, आज आप बिना आई कार्ड के घुस के दिखाओ ना, सुप्रीम कोर्ट पे जाके देखो ना, किसी पुलिस वाले से कह के देखो कि मैं लोग लेके क्यों मेरा एनरोलमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ से जाओगे ना दोस्तों, और जब आपको कोई पूछेगा आप कौन हो, तो ये एडवोकेट को सुन लेते। तो ये फीलिंग में और उस फीलिंग में कितना अंतर है? कितना अंतर है बताइए आप लोग? उस फीलिंग को मेंटेन करने के लिए मेरे साथियों ने बात की आपसे। एनरोलमेंट की बात नहीं की कि जब ये हो जाएगा तब आपकी मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसे प्रोफेशन का डेकोरम मेंटेन रखेंगे हम। आज आप देखिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, मित्तल साहब के टेन्योर 4 से 5 हुई है, राकेश जी 3 टेन्योर से हैं, मेरा यहाँ आई हैव कंप्लीटेड 3 टेन्योर्स हियर लास्ट मोर देन 23 इयर्स आई एम द बार काउंसिल। ऐसे वकीलों ने चुन दिया। वकीलों की राजनीति करना इतना आसान है, तो बाहर निकलने के बाद आइडेंटिफाई नहीं करोगे क्यों? You all will be representative like just a member of parliament. महसूस करिए कि आप आज के बाद उनसे बेटर पोजीशन पर होंगे। तो रिटायर भी होगा। आप रिटायर होंगे कभी? कभी रिटायर होंगे? क्यों? जब ये रिटायर नहीं हो रहे तो आप क्यों रिटायर होंगे? जब मित्तल साहब रिटायर होने को राजी नहीं है, आज हाई कोर्ट जज साहब के 2 का आई कार्ड बनने के लिए आया है, चीफ जस्टिस का भी आई कार्ड हमारे पास आता है, उनका एनरोलमेंट भी हम लोग करते हैं। तो वी आर बेटर देन ऑल प्रोफेशंस, बेटर देन जुडिशियल अफसर, बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं। यहाँ चुनाव आज आपका चुनाव 1 दिन का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कितने दिन का है? हर 5 साल का। वो तो हमारी इच्छा है कि हमें मेंबर पार्लियामेंट बने, मंत्री बने, लगता है ऐसे, लेकिन 5 साल के बाद जनता में जाना हो, जैसे हमको आपके बीच में आना होता है। इतना आसानी से वोट देंगे आप? हम कहेंगे जी मैं सहरावत बोल रहा हूँ, बोले हुई सहरावत, बोले भाई तुम्हारे एनरोलमेंट किया था, बोलो अच्छा मीटिंग में थे ना सर, ये लैंग्वेज हो जाएगी। मैं बोलूँगा मैं गोस्वामी बोला, बोले कौन गोस्वामी? यार चेयरमैन था, तुम्हारे एनरोलमेंट किया। कितना कठिन है एक वोट लेना, और उन वोटों को लेकर 5वीं बार, 4थी बार, 3री बार जीतना और आप लोगों की सेवा करना। यहाँ 5 पैसे का भी बिजनेस नहीं है कि कहीं गलत मत लगा लेना कि यहाँ बैठे थे बहुत बढ़िया काम है। हम पेन भी इनसे मांगते हैं, फिर आपका फार्म पे साइन करते हैं, अपना पेट्रोल लगाते हैं, चाय का भी राइट नहीं है।
ये जो शो देखी ना हमने मिस्टर ठाकुर जी, हमने अपने पैसे से लाके सम्मान किया। यदि बार काउंसिल से मिल रही होती सोल, तो क्या हम आपको एनरोल कर रहे हैं, हमें सोल को नहीं मिली? जो हम लाए ही नहीं, हम लाए नहीं थे अपने लिए सोल, हम लाई उतनी थी जिससे पे इनका सम्मान हो सके। तो दोस्तों, हम लोगों की जिम्मेदारी, इतना समय हम जो आप लोगों का ले रहे थे, केवल इस बात के लिए कि आप लोग आज के बाद एक ताकतवर होंगे। जैसा कहा, लड़ाई नहीं करना, इसका मतलब ये है कि हम आज ही पड़ोस में जाकर, ए भाई साहब गाड़ी हटा लो, मेरा बेटा वकील हो गया, किराए का मकान ले, शाम को बोला पैसे की बात की, बोले क्यों बुलाई रुके होगी। ये चीज नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना है, एक पोलाइट रहना है। वन साइड वी आर ऑफिसर ऑफ द, हम वकील नहीं है, हम ऑफिसर हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज का समय किस चीज का आ गया कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर। यदि हमने क्लाइंट का काम नहीं किया, वी विल मेक द कंप्लेंट इन द बार काउंसिल। वी हैव रिसीव्ड मोर देन 100 कंप्लेंट्स हु हैव गॉट एनरोल्ड इन 2023 अगेंस्ट द लॉयर। ये हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है। हमें आज के बाद अच्छा वकील बनना है, अच्छी ड्रेस पहननी है, अच्छी ड्रेस के साथ तैयारी करके अदालत में जाना है। सब कर्म का है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, गौ न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म कर भोग सब राता। जो खुद कर्म करोगे उसका फल मिलेगा आपको। कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फले सुखदाता। जैसा कर्म करोगे, हम लोग कोई ऊपर से नहीं आए, हमारी कोई सेकंड पीढ़ी नहीं थी, ये बिहार से आए। आई केम फ्रॉम मथुरा। लोग कोई नहीं जानता था दिल्ली। हाइट को पार किया, प्रोफेशन की हाइट से किया, पैसा भी कमाया, राजनीति भी करी। और वकीलों की राजनीति करना, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उस राजनीति में करप्शन है, उस राजनीति में झूठ है। यहाँ की राजनीति ईमानदारी है और आपकी किसी वफादारी है। और वकीलों में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर केवल एक जाति है, एक धर्म है, काला कोट। काले कोट के साथ यदि तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं लगाएगा, पूरी बात कौन सी दिल्ली आपके साथ खड़ी है। आई नहीं आई बता दो। अब महसूस हो रहा है कुछ वकील बनने का मन बन रहा है, नहीं बन रहा है? बन रहा है, नहीं बन? जोर से बताइए आप लोग। बनने का मन है या एडजॉर्न कर दे दिवाली के बाद? नहीं तो फिर कहाँ तुम लोगों में इतना करेंट ही नहीं जितना हमें करेंट आ रहा है तुमसे ज्यादा। तुम आज 35 साल हमें हो गए प्रोफेशन आए, कंप्लीट 35 ईयर, और तुमसे ज्यादा जोश रहता है। तुमसे पहले आने की कोशिश करते हैं, आप सोच रहे हमने घंटा भर बाहर काउंसिल आके चाहिए हमारे को तो डोरमेट सर्टिफिकेट है, आज ही चाहिए। आज चाहिए तो बजाओ अपने लिए ताली साहब। दक्षिणा ले लें आप लोगों से। आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा खुशी होगी हमको। पूछिए क्यों? पेरेंट्स का एक बच्चा है, हमारे इतना परिवार है। लेकिन जहां भी तुम मिलोगे, जिस कुर्सी पे कोई जुडिशियल अफसर होगा, कोई अटॉर्नी जनरल होगा, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम कहेंगे हमने एनरोल किया था। सारा समय ना लेते हुए एक शर्त ले रहा हूं आपसे, आज के बाद कभी कोई आपत्ति हो, घर में फंक्शन हो ना, हमको मत बुलाना, बहुत भीड़ मिल जाएगा। लेकिन आपत्ति और परेशानी है तो भी ऑल 25 मेंबर्स आर all are lucky. You are going to be enrolled by Delhi Bar Council, not by Jharkhand, not by Bihar, not by Odisha. आज के बाद only तुमको एक privilege मिलता है कि you can say you are the advocate of Supreme Court of India. एक शब्द रह गया। आज के बाद एनरोलमेंट होने के हम लोग कहीं भी मिले, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फंक्शन, कार्यक्रम, केवल एक परिवार की तरह से एक दूसरे का सम्मान। आप जोर से बताइए, इस बात के लिए तैयार है आप? नहीं है? ऐसा तो नहीं एनरोलमेंट के चक्कर में कह रहे हो आप? आपको बता देता हूँ, नमस्कृतम चत्वारम वर्धते। सम्मान करने से, नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बल। आपकी आयु भी, विद्या भी, यश और बल भी, और अहंकार खत्म होता है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कैसा लगा, पहले मुझे बताइए सब लोगों को। बार काउंसिल में फर्स्ट टाइम आपका यही इवेंट सेरेमनी कर रहे हैं। हम सबको बिना इंटरव्यू के वी आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू।
और ये खुशी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल एंथम 2 मिनट के लिए, और सब लोग टाइम है हम पे 10 मिनट का, जल्दी से जल्दी आइए। फोटोग्राफर आए, 5 मिनट लगे, 5 मिनट में लाइन से आइए, अपने फोटो खिंचाइए, अपने वो दीजिए फ्रेंड्स को, लेंगे आपके कैमरे वाला है, आगे चाहिए आपको फोटो ले सकते हैं। नाउ यू आर हैप्पी और नॉट? कितने खुश हो रहे हैं? जोरदार ताली अपने लिए सर। सभी आप लोग इसके लिए पढ़ाई किए हो तुम लोग 3 साल 5 साल, आप सभी लोगों का एनरोलमेंट हो गया है। आप लोगों के फॉर्म के सिग्नेचर हो चुके हैं। आप लोगों को कल लेटर regarding the intimation that you have been enrolled by enrollment number such and such, all of you will receive on your WhatsApp number. 11 November is the last date. You fill the AID examination form. You fill the examination form online, upload this letter, and appear in the exam on 3rd of December. आप सभी से अनुरोध है, राष्ट्रीय गान के लिए आप लोग अपने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जगड़ मंगल गायक जय हे भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।